Hi everyone, welcome back to this session. Now that the mains 2024 results are out and we know that prelims 2025 is few months away. तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास, राइट? 4 महीने बचे हैं और इन 4 महीनों को जितना इफेक्टिवली यूज कर सको उतना अच्छा. आई अंडरस्टैंड सम पीपल विल से अरे वी हैव टाइम. जब फॉर्म निकल आता है उसके बाद याद आता है कि प्रीलिम्स आने वाला है. बट ये गलती आप लोग मत करना एंड दैट इज व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर क्लास. What are we going to understand in this session? In a very clear cut, very direct and simple manner, I'm going to help you understand what needs to be followed in the upcoming 4 months. What needs to be done in the upcoming 4 months. बाकी आप जैसे अपनी तैयारी कर रहे हो करो, रिवीजन कर रहे हो करो, बट जो चीजें मिस नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट. And after watching this session, if you have any doubt, never hesitate. Just mail me your doubts on ask@kalam.in or in the comment section, so that abhi ke abhi in this particular week itself, before the weekend comes, your doubts are solved. और कम से कम एक क्लियर हेड स्पेस एंड एक क्लियर डायरेक्शन आपको मिले, सो दैट यू कैन यूटिलाइज दीज कमिंग 4 मंथ्स इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव मैनर. कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे 4 महीने वेस्ट हो जाएं. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट शुड नॉट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट एंड व्हाट शुड बी टेकन केयर ऑफ. सबसे पहला स्टेप, विदाउट टॉकिंग अबाउट एनी अदर पॉइंटर, फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन. आप लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है. In our life also, we often forget what should be prioritized, and that is why we get distracted. If you agree with me, please let me know in the comment section. यही होता है ना? This happens with 99.99% of the people in life. Because we don't know what to prioritize, we often get distracted और फिर हम halfway आकर give up करने लगते हैं. So first thing that you should never be neglecting in this journey is, and in the next 4 months, is importance of prioritization. Often in our focus batches which I take, वहाँ पर स्टूडेंट यही बोलते हैं, मैम हाउ मच शुड वी स्टडी इन पॉलिटी, हाउ मच शुड वी स्टडी इन हिस्ट्री. दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक दैट दे आर डूइंग. आई ऑफन करेक्ट देम बाय टेलिंग देम you should never focus on how much to study, you should focus on what should be studied. अगर हाउ मच क्वांटिटी पे जाओगे, देन देर इज नो लिमिट. इन यूपीएससी इट इज सेड एवरीथिंग अंडर द सन कम्स. दैट डज नॉट मीन कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड यू हैव टू प्रिपेयर, बट द पॉइंटर इज हाउ मच में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं एंड रिसोर्सेज आर एंडलेस. ऑन पॉलिटी इटसेल्फ देयर आर 1000 बुक्स. कितनी बुक्स पढ़ोगे? But what should be studied? If you are starting with polity, make sure you know that class 11 to class 12 NCRTs are important. M. Lakshmikant book, latest edition is important. Linking current affairs with standard topics is important. Other than this, nothing else is important for polity. कुछ भी जरूरत नहीं है पढ़ने की, कोई किताब मार्केट में पढ़ने की जरूरत नहीं है. If you have M. Lakshmikant book, latest edition, NCRT class 11-12, there are total 4 NCRTs, and you have the PYQs. आप current affairs regularly पढ़ रहे हो, then nothing else is required. इसी को 2 से 3 बार रिवाइज करना है. That's it. What should be studied should be the priority in your head. Now I'll help you understand what should be studied. In the next 4 months, आपको किन areas पे ध्यान देना है. We need to understand that there are core areas to focus on. जब भी हम बात करते हैं areas की, क्या पढ़ना है? Core areas. 4 core areas you need to focus on. First core area here is polity. Second core area, history. Third, geography. Then we have economy, then we have current affairs. Please write it down. These are the core areas, core subjects you need to focus on. When we talk about polity में अगर हम देखें, so what is important in polity? Constitution. In Indian polity, M. Lakshmikant book, 7th edition, the latest edition, the first 5 chapters are very important. Okay, especially the chapter on concepts of constitution, that is core, that is key. वो तो भूलना ही नहीं है. concepts of constitution बहुत जरूरी chapter है. preamble is very important. ठीक है. now another important aspect, यहाँ पर in constitution we need to remember that we have to study preamble, we have to study fundamental rights, we have to study DPSPs, we have to study fundamental duties. ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज एवरी ईयर
की टॉपिक्स, की टर्म्स फ्रॉम प्रीएम्बल क्वेश्चंस आर आस्क्ड। लिबर्टी के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, 3 times on constitutional government question was repeated. How can you skip it? And why will you skip it? But we skip it every time when we study NCRTs or M Lakshmikant book, because हमें तो बड़े बड़े चैप्टर दिखते हैं ना, तो हम इसको छोड़ देते हैं। एंड दैट इज वेयर वी आर डिफॉल्टिंग। अमेंडमेंट्स का चैप्टर है, हर साल हम उसको स्किप करते हैं। वी थिंक दैट ओनली अरे करंट अफेयर्स में देर आर एनी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स वील स्टडी दैट। वाई? यूपीएससी has time and again asked questions on amendments, हर फर्स्ट अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट, सबके ऊपर तो क्वेश्चन बने हैं, बट वी स्किप इट। फंडामेंटल राइट्स एवरी ईयर आर्टिकल 21 इज यूपीएससी फेवरेट आर्टिकल, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। DPSPs, UPSC's favorite area. Fundamental duties, UPSC's favorite area. We are skipping it. Kyun? Okay. Then next, if you go, and all of this is important. I have reached to this conclusion because of the PYQs only. Previous year questions तो भाई fundamental की है समझने की कि UPSC सोचता कैसे है. You will understand the exact brain and mind of UPSC through the PYQs itself. At least last 8 years की PYQs are must. Major pattern change was seen in the last 8 years only. Okay. Then next important topic in polity, what you need to study, landmark judgments. Last 1.5 साल में क्या क्या landmark judgments निकल कर आई हैं, पढ़ना जरूरी है। केशवानंदा भारती केस एंड गोलकनाथ केस को तो आप भूल ही नहीं सकते। It is covered in basic structure doctrine chapter also in your M Lakshmikant book. Okay. Then next is parliament is very important. पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड एवरी स्टूडेंट ट्राइज टू अवॉइड दिस चैप्टर बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। बट अगर आपने एक बार इसको कवर कर लिया, ट्रस्ट मी, नथिंग एल्स इज मोर इंटरेस्टिंग देन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, प्रोसीजर, बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स, ऑल ऑफ दिस इज आस्क्ड एवरी ईयर। देन नेक्स्ट इज लोकल गवर्नेंस, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, लोकल गवर्नेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैन नॉट स्किप इट एंड कैन नॉट एस्केप इट ऑल्सो। सो दीज आर द कोर एरियाज वेयर यू नीड टू फोकस ऑन। अगर ये आपके फिंगर टिप्स पे है, कम से कम 2 से 3 बार आपने रिवाइज किया है, ट्रस्ट में आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा इन पॉलिटी। इवन इफ 18 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, you would be in a position to solve 10 of them, 11 of them very confidently. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? कोर एरियाज टू फोकस समझ आ गया। नाउ हिस्ट्री की बात करते हैं। आफ्टर ना स्टडिंग एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी चैप्टर, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू सुपर कलाम एंड सॉल्विंग एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन इट। फॉर एग्जांपल, गिव मी, यू हैव स्टडीड पार्लियामेंट टॉपिक टुडे, गिव मी MCQs on parliament. Now, after closing the chapter from M. Lakshmikant book or from your NCRTs, make sure that you are practicing MCQs on it. Make sure you are practicing previous year questions with Super Kalam on it. उससे क्या होगा, वट एवर यू हैव स्टडीड यू विल सॉलिडिफाई इट। अल्टीमेटली आपकी साइमल्टेनियस रिवीजन हो रही है, इसको स्किप मत करना। दिस इज द एस्पेक्ट विच एवरीवन स्किप्स। नाउ सुपर कलाम इज मेकिंग इट वेरी पॉसिबल फॉर यू, राइट, टू कवर योर रिवीजन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या क्या है आपको पता होना चाहिए, द सिलेबस क्लियरली। वी हैव मॉडर्न हिस्ट्री, देन वी हैव एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, एंड देन वी हैव आर्ट एंड कल्चर, इसी के अंदर इंक्लूडेड है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब आपको सिलेबस क्लियर हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 टू इंडिपेंडेंस यू हैव टू कवर, फोकस ऑन द मूवमेंट्स, फोकस ऑन द लीडर्स, द एक्ट्स एटसेट्रा, कांग्रेस के सेशंस हुए थे वो याद रखने हैं। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में क्या करना है, आर्ट, आर्किटेक्चरल, द कल्चरल डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर का एस्पेक्ट कवर करना है इन प्रीलिम्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच हैपेंड, LPG रिफॉर्म्स एटसेट्रा, वो आप यहाँ पर ध्यान देंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में। ओके, हिस्ट्री के कोर एरिया समझ आ गए। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफीज कोर एरिया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, यहाँ पर हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी आ जाती है, एंड इसी के अंदर इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी कवर्ड है। फिजिकल ज्योग्राफी में ऑलवेज रिमेंबर यूज NCRTs इन प्रीलिम्स फॉर रिवीजन। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, क्लास 9 से क्लास 12 की NCRTs को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना है। मेक श्योर आप हफ्ते हफ्ते भर का टारगेट बना रहे हो। इन दिस 1 वीक 9 से 10th की NCRTs I'll revise, this 1 week 11 से 12th की NCRT I'll revise. In physical and geography, NCRTs focus on the mountains, focus on rivers, focus on plate tectonics, cyclones,
वेदर, क्लाइमेट, इन टॉपिक्स पे बहुत फोकस करना है। एंड रिसेंटली साइक्लोन फेंगल वाज इन न्यूज, राइट? साइक्लोन हर साल आते हैं, न्यूज में रहते हैं, क्वेश्चन जरूर बनते हैं। This year's prelims 2024 talked about volcanoes, the things that come out from the volcano. एनसीईआरटी का ही टॉपिक कवर हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड। सो डू नॉट स्किप एनसीईआरटी, ट्रस्ट मी, पीवाईक्यूज को देखोगे समझ आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रही हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस यू विल सी इन ज्योग्राफी डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटीज। एंड उसी में आपका इन्वायरमेंट भी कवर हो जाता है, क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एटसेट्रा विच आर इन न्यूज, रामसर साइट्स, वेटलैंड साइट्स, 8 वर अनाउंस्ड, कवर देम। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। इसी के अंदर मैप आ जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आई हैव रिटन इट डाउन ओवर हियर आल्सो, डू नॉट इग्नोर मैप्स। I always give these kind of maps on our Telegram community so that students can understand visually कौन से areas, seas, oceans cover हुए हैं news में. Whatever seas, oceans are covered in news, I always create a map. This is hand-drawn map by me. I always create this map so that students can participate in naming the oceans and seas which were in news and why they were in news. इससे होता क्या है, whenever you are covering maps, आपके visual memory में maps stick हो जाते हैं. And if in your visual memory the maps are fixed, then you can never get any map based question wrong. For example, the Ionian Sea, which are the nations sharing borders with Ionian Sea, they can ask you to arrange it serially, right? तो इसलिए ये मैप्स को करना तो बहुत ज़रूरी है. यू कैन नॉट अवॉइड मैप्स, यू हैव टू डू इट. वट एवर मैप्स आई एम शेयरिंग ऑन टेलीग्राम, प्लीज सेव इट. उसको सेव तो करना शुरू कर ही दो. नाउ कमिंग ऑन इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स पे जाते हैं. जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, क्या कवर करना है इकोनॉमी के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बेसिक्स यू हैव टू कवर. बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लाइक वी हैव जीडीपी, वी हैव इन्फ्लेशन, वी हैव मॉनेटरी पॉलिसी, वी हैव फिस्कल पॉलिसी. ये कवर करना ही करना है. राइट इट डाउन प्लीज. एंड इफ यू डू नॉट हैव द बेसिक्स कि कहाँ से रिसोर्सेज कवर करें, यू हैव सुपर कलाम विद यू, है ना? आपके पास सुपर कलाम भी है, ये होना बहुत ज़रूरी है अपने पास. सी, फ्यू ईयर्स बैक देयर वाज नो सच टेक्नोलॉजी विच कुड हेल्प अस इन आर रिवीजन इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर. नहीं होता था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम. आई डिड नॉट हैव एनी सच टेक्नोलॉजी. यूट्यूब की कुछ चैनल्स होते थे एंड आई यूज टू गेट कंफ्यूज बिकॉज देर आर सो मेनी वीडियोज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. Now I'll show you how you can understand even complex topics of economics with simple examples. Okay, I'll just ask कि explain what is, let's say, repo rate with an easy example. Now here you can see, अगर आपकी इकोनॉमी वीक है थोड़ी, just like my economics initially was a bit weak, right? So my father was a chartered accountant. He used to take small anecdotes from his personal life and used to explain the working of economy. और वहां से मेरी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होनी शुरू हुई. Here also super kalam helps you understand, simplify a complex topic with very easy example. For example, what is repo rate? Interest rate at which central bank, which is the RBI, it has mentioned that also. Okay, it lends money to commercial banks. So basically imagine that a bank is needing 100 crore. हमारी डेली रिजर्व की रिक्वायरमेंट्स है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें 100 करोड़ चाहिए. इट कैन बोरो दिस 100 करोड़ मनी फ्रॉम आरबीआई एट रेपो रेट विच इज 6%. ओके, लेट्स से इट इज 6%. एंड बैंक क्या करेगा? कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कोलैटरल के फॉर्म में आरबीआई को. आप कुछ गिरवी रखो, फिर आपको पैसा मिलेगा. ओके, सो दिस इज हाउ. एंड सी, द रेफरेंस मटेरियल इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लेन्ड कि अगर आपको रेपो रेट को अच्छे से पढ़ना है तो एनसीईआरटी में क्लास 12th एनसीईआरटी कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ओके, वहां से भी आप पढ़ सकते हो. एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर. फर्दर रेपो रेट समझने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. दिस इज समथिंग विच हेल्प्स यू इंटीग्रेट योर प्रिपरेशन विद एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स के अंदर तो एटलीस्ट, है ना? सो फर्स्ट इज focus on the basics in Indian economy. Then all the international organizations like World Bank, like WHO, like WTO, UN हो गया, G20, all the important summits are important जहाँ पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कवर्ड होते हैं. ठीक है. देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इसमें करंट ट्रेंड्स पढ़ने बहुत जरूरी है. व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स? ओके, करंट ट्रेंड्स है कि क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर बात हो रही है. नाउ इट इज ऑल्सो कोरिलेटेड टू इकोनॉमी ओनली. ओके, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है. व्हाट आर द स्कीम्स रिलेटेड टू डिजिटल इकोनॉमी विच हैव बीन टॉक्ड अबाउट इन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. इस साल का जो बजट आएगा ना 2025 का,
वो आपको कवर करना है, एंड 2024 का जो बजट आया है फेब में, वो भी आपको कवर करना है, एंड आई हैव क्रिएटेड फुल फ्लेजेड क्लासेस ऑन बजट with my own handmade notes. So you can find them on this channel and you can cover them effectively. Now coming to current affairs. जब हम current affairs पे आते हैं, it is a culmination of polity, history, geography and economy all together. Current affairs में क्या पढ़ना है? Focus on last 1.5 years of current affairs. So at Super Kalam, अक्टूबर से तो हमने current affairs कवर किए ही हैं. I'll show you. You go to your dashboard in Super Kalam. Monthly current affair magazine पे आप क्लिक करोगे, and here August, September, October, November magazines are provided. Okay, click on any month's magazine and you can complete the revision of the current affairs, and you can also practice questions जो magazine में भी दिए हुए हैं आपको. ठीक है, बट उससे पहले कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं आप उनको अपने नोट्स के थ्रू भी कवर कर सकते हो. और व्हाट एल्स यू कैन डू, यू गो टू द डैशबोर्ड इटसेल्फ. आप डैशबोर्ड में जाओ, दिस ग्लोब आइकॉन यू कैन सी, इस पे क्लिक करना है आपको. When you click on this globe icon, all the important current affairs have been covered by Super Kalam. Or you can cover them through your DPQs, daily prelims question. यहाँ जाओगे, daily prelims question में आप 5 to 6 MCQs we have prepared from current affairs in the last 1 year. Okay, you can cover them here also. प्रैक्टिस करते जाओ फटाफट, रोज 20-25 MCQs प्रैक्टिस करो, कवर करो अपने करंट अफेयर्स. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. सो अनदर इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच यू कैन कवर योर करंट अफेयर्स ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस. प्रिलिम्स, देखो हमने जब बात की इन कोर एरियाज की, कोर टॉपिक्स की, वॉट एवर यू आर preparing here, it will be also helpful in your mains. बट अगर सिर्फ प्रिलिम्स की बात करें, सो इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक यू कैन नॉट स्किप. इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगेन ज्योग्राफी से लिंक्ड है, साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स से लिंक्ड है. ओके, प्रैक्टिस इट थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो. यहाँ पर पीवाईक्यूज के रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते. ओके, मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इट थ्रू पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज आर ऑल्सो गिवन ओवर हियर. आप इस पे क्लिक करो, एंशिएंट हिस्ट्री डालो, क्लास टेस्ट में जाओ. ठीक है, इस पे क्लिक करो, आर्ट एंड कल्चर डालो, एंड यू विल सी ऑन आर्ट एंड कल्चर ऑल द पीवाईक्यूज ऑल्सो कवर्ड. ठीक है, इस पे सारे पीवाईक्यूज भी कवर्ड है. आप यहाँ से भी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, बट स्ट्रैटेजी टू अवॉइड द पिटफॉल्स ये क्या रहेगी, मतलब वेयर यू कैन फंबल, वेयर यू कैन फॉल डाउन राइट इन योर प्रिपरेशन. इफ यू आर स्किपिंग द पीवाईक्यूज, यहाँ गड़बड़ हो सकती है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्किपिंग योर पीवाईक्यूज. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, एंड आई वुड से टॉपिक वाइज, वॉट एवर टॉपिक और कॉन्सेप्ट और चैप्टर यू आर कंप्लीटिंग, instantly practice PYQs with Super Kalam on that concept. Revision is important. What is revision? Again, whatever you are studying, practicing it instantly is revision. रिवीजन का मतलब ये नहीं है मैंने आज जो पढ़ा उसको एक हफ्ते बाद फिर से रिवाइज करूंगा. इसका मतलब है ये डेली होता रहेगा. एक हफ्ते का गैप भी क्यों आए? आई हैव स्टडीड पार्लियामेंट टुडे, आफ्टर स्टडिंग इट आई विल प्रैक्टिस PYQs and MCQs with Super Kalam on parliament. Then daily I'll just go through my mind maps or notes that I have made. I will not skip it for entire 1 week and then again open up my books and revise. Okay? एलिमिनेशन टेक्निक, जितने ज्यादा MCQs प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगा व्हाट टू इग्नोर. जितने भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, ये ऑल्सो एंड ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना है इन एलिमिनेशन टेक्निक. सेकेंड इज यू नीड टू अंडरस्टैंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज ऑल ऑफ द अबव. जब क्वेश्चन में पूछा जाता है या नन ऑफ द अबव, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम. इस पे भी फोकस करना है. दीज क्वेश्चंस हैव टू बी रेड वेरी केयरफुली. एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस टू अराइव एट द करेक्ट ऑप्शन. और ये प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, सिर्फ मेरे बोलने से और आपके सुन लेने से आपको समझ नहीं आएगा. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक. एंड लास्ट इज योर मॉक टेस्ट. इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. सी एट सुपर कलाम ऑल्सो वी आर कंडक्टिंग द मॉक टेस्ट, वी आर कंडक्टिंग द टेस्ट सीरीज. सुपर कलाम पे भी हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं कंडक्ट. You can enroll in it. You can also attempt the sample test if you want to check the level of questions that we are preparing. It is same on the basis of the prelims. Actually, the test series which we launched for prelims 2024, 43 questions from that test series directly came, and it is given here also. आप देख सकते हो. I'll show you how. See over here. डाउनलोड पीडीएफ पे जाओगे, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन मैच इट. पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो. डायरेक्ट 43 क्वेश्चंस विद प्रूफ आई हैव शेयर्ड. ठीक है,
सो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन इट। इस पे आपको मॉक टेस्ट पे, टेस्ट सीरीज पे फोकस करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। डू नॉट इग्नोर इट, इसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड ऑल ऑफ यू टू मेक श्योर कि आप इसको ध्यान में रखो। ठीक है। आपको ये सारे एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने हैं अपने प्रिपरेशन के अंदर, अपने प्रिपरेशन के लिए। यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दीज एडवाइजेज एंड फीडबैक्स एंड गाइडलाइंस ना, ट्रस्ट मी, आप कॉन्फिडेंट ही फील करोगे बाय द टाइम यू अराइव एट योर प्रिलिम्स एग्जाम। ट्रस्ट मी ऑन इट। और इसमें से कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं है जो आपको पता ना हो, पहले से पता है, बट वी ऑफन फॉरगेट, एंड दैट इज वेयर वी इंक्रीज आवर ओन एंग्जाइटी। ओके। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस एडवाइस। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो यू कैन रीच मी एट ask@kalam.in। और ये ना सही टाइम है टेस्ट सीरीज में एनरोल करने का, बाय द वे। अगर और डिले करते हो, फेब्रुवरी तक रुकते हो, तो एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है। सो प्लीज डू नॉट डिले इट एट एनी कॉस्ट। इसको डिले मत करना। मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस। मेक श्योर यू आर इनरोल्ड इन द टेस्ट सीरीज नाउ इट सेल्फ। दिस इज द राइट टाइम। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरी। आई रियली होप दैट आप इसको फॉलो करो एंड यू गेन कॉन्फिडेंस आफ्टर फॉलोइंग दिस एडवाइस। थैंक यू सो मच।